Numbers are not increasing. The students are more than 160 around, and still the number is 138. Kindly make it fast, those who are still have not done it. चलिए जिनका रह गया है वो कर. Then I would close the responses. Should I discuss with you what is the exact answer, yes or no? Okay. And I am closing the responses. Those who have still left. किसी का रह गया आप में से, बाकी कोई सो रहा है तो अलग बात है. कोई रह गया तो बताइए, अदरवाइज मैं responses close कर रही हूँ. कोई है जो अभी कर रहा है? Any of you, those who is still filling it? ओके, कुछ लोग कर रहे हैं. जल्दी करिए बच्चे, कितनी देर लगाएंगे आप? सर्च करके कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है. इन द नेक्स्ट 1 minute आई वुड बी क्लोजिंग इट. अगर आप लोग गूगल सर्च कर रहे हैं तो हो गया फिर तो. Because we need to discuss another poll for this, another poll for another case study, so that people were involved in that, na, please kindly make it fast. तो मतलब आप लोग सारे गूगल कर रहे हैं, जो लोग लेट सबमिट कर रहे हैं, those who are doing Google only. And 11 o'clock the time दिया था, it's already 11:07. तो क्या कर दूं क्लोज? कोई और भी कर रहा है शिवानी के अलावा? Anybody else is doing it? Just write in the chat if you're still doing. See, now the number is being increased. It was taken at 140, now it is 147. जल्दी करिए बच्चे प्लीज. Done? Should I close it? तो कर दूं बंद? हो गया सबका? I'm closing it. और किसी का रह गया है? कोई है जो कर रहा हो अभी? डन है? 169 में 20 स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ पे गलती है, बट that must be less number as compared to the 21. 150.
it. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बता दीजिए, otherwise मैं close कर रही हूँ. It's closed now. किसी का है तो अभी लिखिए chat पे. ओके, दो केस स्टडी डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ. मे बी किसी का रिप्लाई आ जाए. One is doing it. I need to reopen the responses. Okay, another case study is from the Levi Strauss, your Levi's jeans. You have been wearing it, or you have been known to this brand from the years. Okay, Levi's strategy. What was the case? Actually, most of the factories were facing the problem of the child labor in the Bangladesh. The two factories in Bangladesh were recently faced the problem who were employing the workers under the minimum working age. The issue of this underage labor, or basically this child labor, is complicated one in the Bangladesh or in any of the country. Another problem was that most of the children were not having the birth certificate. See, if they would be above 14 years of the age, it is not known to them. Okay, हो सकता है कोई बच्चा ऑलरेडी 18 इयर्स का हो और ऑलरेडी वो वर्क कर रहा हो, बट उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे. ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बिकॉज malnutrition problem, poverty and others problem, the people were looking younger than their age. कुछ कंपनी ने सिंपली इंस्ट्रक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स को टू फायर देयर अंडर एज वर्कर्स, मतलब टू नॉट टू इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट legislation. They have just instructed that you just don't give us the child laborers. We would be not employing the child labor for long, so that we need not to entertain any legal rules, regulations, or the restrictions from the government side. But at this stage, this Levi's has designed a new strategy. They have designed another method which could help the students, which could help the children to grow, and also will serve the purpose of employing that children. Agar hum in, like, some companies have already fired these underage workers, this has created the problem of the poverty, this has created the problem of unemployment. Okay, so such problems has also been encountered by this service company. Okay, now I am sharing with you a poll. Just mark your answers. What do you think of? Okay, sorry. It was a discussion only. It was not having any poll. Actually, just let me know what do you think the Levi's has done of, or at this situation, अगर आप already किसी company में हैं, ये problem आपके सामने आ जाती है, so what you will think of? You will also instruct the contractors to fire underage workers. Child labor problem है, children को अगर हटाएंगे तो it will create the problems of the unemployment, poverty will increase. So what is the best solution? You would think of. बताइए आप लोगों के हिसाब से आप क्या सोच सकते हैं? किसी को अनम्यूट करना है, just raise your hands. I would let you unmute, or those who would like to write, they may. This is the best solution one could think of. Are you able to think कि क्या possible solution है, yes or no? I've only spoken one word related to the solution.
in between. To send them for the education. Okay. तो अगर हम उनको एजुकेशन के लिए सेंड कर देंगे तो लिवाइस का कैसे बेनिफिट होगा ना, फिर उनकी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. So how it would deal with the education cost with the another benefits? Anybody else would like to contribute? Levi's may fund their education instead of paying them. Yes, they could fund their education instead of paying them. Okay, they could have the sponsors for that. Lot of services which help them in positive manner. Okay, कैसी सर्विसेज हो सकती हैं वो पॉजिटिव मैनर में उनको हेल्प करने के लिए? ये जो बात हो रही है कि हम एजुकेशन के लिए या फंड के लिए लेंगे, वुड इट हेल्प द लिवाइस इन द लॉन्ग रन, और हाउ इट वुड हेल्प? मतलब अगर आप किसी को एजुकेशन के लिए, कोई कंपनी किसी के लिए एजुकेशन स्पॉन्सर करती है, हाउ इट वुड गोना हेल्प लिवाइस ना, और हाउ इट वुड गोना हेल्प माय कंपनी ना. मुझे उनको एजुकेशन देके क्या होगा? आई एम नॉट द गवर्नमेंट, आई एम नॉट हियर टू डिसाइड द सोशल बेनिफिट्स. Any of other students, only 3 students have written. Other students may write up. Yes, everybody has did this promotion. The social benefit or the social responsibility will help you with the promotion. और कुछ आप लोगों ने क्या पढ़ा है? This is the part of your corporate social responsibility होगी. That is very important. कोई company की education है. That is the part of your education only, is it? ऐसा नहीं है? Was I audible to you just few minutes back? Was completely audible to you all people? Just few seconds before. Okay, fine. Yeah. Everybody must have heard, na? Corporate social responsibilities, education. Okay. So that was the thing done years back when this corporate social responsibility was done very less. At that time, this have given a broader scope for the education, no doubt, for the giving the scope for the corporate social responsibilities, helping the NGOs by the government, by this firm only, and approximately also helping indirectly or advertising their business. So here's the benefits comes to. So this Levi-Strauss and Company, managers and consultants or the contractors signed an agreement, signed a treaty that they will continue to pay these underage workers all the salaries and the benefit if they would attend the school rather than coming to the factory. अगर वो जाके स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो they would pay the salaries and benefits so that the unemployment problem will not occur, so that उनकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो. They would not think कि अगर वो they would spend the time in the education, how they would earn the livelihood, how they would able to eat the food, have the shelter and other basic necessities. Even this Levis company has designed or have developed some of the structure. If they are able to pay, send the students to the government schools or other schools, then it is okay. Also, they have set aside separate areas
for the schools. They have some of the teachers, they have employed some of the teachers, those who would be teaching them, those who are not able to get into the schools due to the birth certificates or the other things, if not available. Okay, if public schools are filled, government schools are filled, then they would be occupying some space, teaching the students there so that they could have the basic primary education. And once the person get attain the age of the 15 years, they could rejoin the factory and they could continue their education as well as they could continue their job. With this, approximately $1 million has been set aside for the education in the Bangladesh, and it has been already being praised by the Bangladesh and the US government officials, because they have set aside a big amount for the education for around 75,000 child laborers, and especially the girls, those who were employed in the levies. And it would also have the promotional benefits in the long run. The people prefer those products, those who the companies who are giving the social security benefits or the perquisites to the public. This is all this case study. Another, I think you people would able to contribute. This was a product being designed or just a strategy being designed so that the kids could think beyond. जब हमने बात करी starting में, that design thinking is for the all. In America, this situation was analyzed, or everybody think of a company like Great Fast company designed this article on the teaching kids. What they have defined, that when everybody is saying that you need a change in the education, why the change in education is needed? See why? To need new minds, new creativity with new thinking, to have face number of the problems like in current scenario. What are the problems like renewables energy, hunger, climate? Okay, all these issues were not severe when we were kids, or when our elders, our parents, our grandparents were kids. Okay, these problems were not severe, but due to changing time, due to increasing population, due to change in the technology, these things have taken place. These things have been covering their space, removing the other things, and taking the place, each and every square. At this point of time, this your Great Fast company design a strategy or help you to give a scientific approach to develop and reason multiple methods in the kids so that they could think of. Albert Einstein said also, you cannot solve a problem with the same mind that created it. जो आपके अंदर mind है, उसी से problem नहीं solve होती है. आपको उस mind में बहुत सारे inputs डालने पड़ते हैं. It could be environmental factors, it could be the knowledge, it could be your observation, it could be your survey, or anything that needs to be incorporated every time. Okay, let's move to the poll now. Okay, again the two question would be there. Yes, now you would be able to see this. Kindly fill this.
You must have seen the results. आपकी Great Pass जो कंपनी है, they have designed two methods. One is your prototype design campaign, this one, which was asked in your poll, first of the question. What do you think prototype design campaign है क्या? It is inclusive of all the things, points given, or it is one of the factors which are given. Another is your quantum entanglement, connecting the things together so that they could work like a machine. So that is another thing. Okay, so they have designed the two things to inbuild the design thinking in the kids. See, they have designed, अगर आपको किसी में भी कोई भी स्किल इम्पार्ट करनी है, किसी की माइंड मैपिंग, किसी की वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, तो आप उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव 3-day डिजाइन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स वर्क एज मेंटर्स एंड द मेंटीज. Okay, they are not the instructors, they are not the teacher and students, they are just mentors and mentees. They are just working like the friends work in the informal group, so that they could address the real life problems. Okay, to build design thinking skills, to learn collaboration and the teamwork, to have the new networks, to develop the design, school design, to increase their experience, to have their deep interest, and so that they could have more of empathized knowledge and more and motivation to bring the change in the country, to bring the change in the long run. This what the prototype design includes. अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके हिसाब से जो प्रोटोटाइप डिजाइन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे, आपके पास पूछा गया प्रोटोटाइप डिजाइन कैंपेन क्या है, क्या ये इंटरैक्टिव ग्रुप है, क्या ये गेट टुगेदर है, या ये बिजनेस मॉडल है, स्टूडेंट मेंटर ग्रुप है, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है. सी इट वुड हैव, यू नीड नॉट टू फिल इट अगेन, ठीक है, आई हैव जस्ट शेयर इट टू डिस्कस. आप लोगों को दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है. So it's basically it's all of all. It's not ये सब ही ऑप्शंस था. आपको एक गेट टुगेदर भी मिल रही है, आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है, मेंटर रिलेशन भी मिल रहा है. या ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है. हम इसको बिजनेस मॉडल भी किसी ने क्लिक किया है तो रॉन्ग नहीं है, बिकॉज इन द बिजनेस मॉडल एंड द बिजनेस सेटअप डिस्कशंस टेक्स प्लेस, सो इट इज आल्सो नॉट रॉन्ग. ओके, अनदर इज योर दिस quantum entanglement. What is this quantum entanglement? See, quantum entanglement का मतलब ही यही होता है कि आपने कुछ पार्टिकल्स, कुछ वेक्टर्स को कंबाइन कर दिया है, ठीक है. अब इसको ह्यूमन रिसोर्स के साथ कैसे लिंक किया? Quantum entanglement here means to entangle the design and learning of not these particles but of the kids, of the mentors, of the mentees, so that उनकी विजुअल अप्रोच, उनकी डिजाइन थिंकिंग, उनकी माइंड मैपिंग, उनकी एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी कुड इंक्रीज. ऑलरेडी जनरेशन में इतना गैप है, मेंटर्स और मेंटीज में भी होगा. सो व्हेन यू वुड बी इन्वॉल्विंग देम like a group, like a mentor mentee, this would involve more, not like a teacher student, not like the boss and juniors. It must be like the one group, like the friends are discussing. Okay, less of mentor mentees, more of the informal groups will bring the changes. That's what the quantum entanglement means. So this was just asked कि अगर आपको पता है quantum entanglement की वैसे definition यही है. Once two particles experience a shear state, they are no longer connected. ठीक है, तो yes, it is true. Those who are not aware, they have just marked it close. They have just marked it don't know. So this was just an exercise to see whether how much you could think of the terms which are not being discussed with you. Okay, just like हमने प्रोटोटाइप डिस्कस किया है, एंटेंगलमेंट सबको पता ही होगा, ठीक है. तो सम थिंग्स आर बीइंग क्रॉस लेफ्ट. सो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस? दिस इज अबाउट दिस केस स्टडी. नाउ द नेक्स्ट इज योर क्रिएटिविटी. बिफोर मूविंग टू द क्रिएटिविटी, लेट्स शेयर द रिजल्ट्स. आपके क्या आंसर्स हैं मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ. हो सकता है आप लोगों ने ठीक ही फिल किया,
What are the steps of design thinking process? These are empathize, define, ideate, prototype, test. किसी ने ध्यान से सुना हो तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपने सेकेंड ही मार्क किया होगा. डिजाइन थिंकिंग एक लीनियर प्रोसेस है. नो, हमने डिस्कस किया था. इट वाज अ नॉन लीनियर प्रोसेस एंड इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस. डिजाइन थिंकिंग टिपिकली हेल्प्स इन, आपकी इनोवेशन में हेल्प करती है in the layman terms. So it was the simplest one. Our needs to have professional training in designing to become a design thinker. किसी को professional training चाहिए नहीं, ये सबके लिए है तो कोई professional training चाहिए ही नहीं. It was the simplest one. The college is redesigning its website. Current students are the main users of the website. Which one of the below elements would definitely? इसमें से सबसे ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन तो आती रहेगी. बच्चों के पास कोर्सेज ही नहीं होंगे तो बाकी इंफॉर्मेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है. फैकल्टीज भी कोर्स ही पढ़ाने आएगी, एलुमनाई लेटर ऑन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस आपकी करिकुलम और कोर्स ही होगा. नेक्स्ट इज विच इज नॉट द गुड इंटरव्यू स्ट्रैटेजी फॉर द एम्पैथी स्टेप. एम्पैथी स्टेप इज योर प्री स्टेप. जब आप एनालाइज कर रहे हैं कि सामने वाला इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यूई जो आया है, उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उस टाइम पर आपको शॉर्ट आंसर्स अवॉइड करने चाहिए. तो दिस इज नॉट द बेस्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन. अनदर इज ड्यूरिंग विच स्टेप डू यू नैरो फोकस टू अ स्पेसिफिक मीनिंगफुल चैलेंज. जहां आप सबसे कम फोकस करते हैं स्पेसिफिक चीजों पे, वो है आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज डिफाइन. यहाँ पर है ड्यूरिंग दिस स्टेप यू अलाइंड ऑथेंटिक ऑडियंस टू इंटरैक्ट. इंटरैक्ट कब करती है? जब आप उनके साथ टेस्ट करते हैं तब वो आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटोटाइप स्टेप इज ट्रू. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रोटोटाइप के लिए ट्रू है? प्रोटोटाइप इज बेसिकली टू गेट द आइडिया इनटू द फिजिकल वर्ल्ड. जब आप टेस्टिंग के लिए एंटर कर जाते हैं, दैट इज द राइट पॉइंट. सेकेंड स्टेप कौन सा है? सेकेंड स्टेप आपका डिफाइन ही है. एम्पैथाइज इज योर फर्स्ट स्टेप. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर्स. किसी को कोई आंसर रिपीट करना तो बता दीजिए. यहाँ हम डिजाइन थिंकिंग खत्म कर रहे हैं. वी आर एंडिंग विद द डिजाइन थिंकिंग. वी विल मूव टू आवर क्रिएटिविटी नाउ. डन. ठीक है. Then moving forward, just take this video. We'll discuss it then. Creativity है क्या? In case it is not audible to you, let me know first. At GM, we are working towards a transition to 100% zero-emission vehicles by 2035. There are two reasons. आपको audible है सबको? सबको audible है? Yes or no? Okay, ठीक है. Thank you. Companies fail. They only do more of the same, or they only do what's new. To me, the real solution to quality growth is figuring out the balance between two activities, exploration and exploitation. Both are necessary, but it can't be too much of a good thing. Consider Fawcett. I'm actually old enough to remember that. Fawcett was a fantastic company. They were born deep in the Swedish forest and they made the best mechanical calculators in the world. Everybody used them. And what did Fawcett do when the electronic calculator came along? They continued doing exactly the same. In 6 months, they went from maximum revenue and they were gone. Gone. To me, the irony about the Fawcett story is hearing about the Fawcett engineers who had bought cheap, small electronic calculators in Japan that they used to double check their calculators. Fawcett did too much exploitation. But exploration can go wild too.
A few years back, I worked closely alongside a European biotech company. Let's call them Oncosearch. The company was brilliant. They had applications that promised to diagnose, even cure, certain forms of blood cancer. Every day was about creating something new. They were extremely innovative. And the mantra was, when we only get it right, or even, we want it perfect. The sad thing is, before they became perfect, even good enough, they became obsolete. Oncosearch did too much exploration. I first heard about exploration and exploitation about 15 years ago when I worked as a visiting scholar at Stanford University. And the founder of the ideas is Jim March. And to me, the power of the ideas is its practicality. Exploration. Exploration is about coming up with what's new. It's about search, it's about discovery, it's about new products, it's about new innovations. It's about changing our frontiers. Our heroes are people who have done exploration. Madame Curie, Picasso, Neil Armstrong, Sir Edmund Hillary, etc. I come from Norway. All our heroes are explorers, and they deserve to be. We all know that exploration is risky. We don't know the answers. We don't know if we're going to find it, and we know that the risks are high. Exploitation is the opposite. Exploitation is taking the knowledge we have and making good better. Exploitation is about making our trains run on time. It's about making good products faster and cheaper. Exploitation is not risky in the short term, but if we only exploit, it's very risky in the long term. And I think we all have memories of the, famous pop groups who keep singing the same songs again and again until they become obsolete or even pathetic. That's the risk of exploitation. So if we take a long-term perspective, we explore. If we take a short-term perspective, we exploit. Small children, they explore all day. All day is about exploration. As we grow older, we explore less because we have more knowledge to exploit on. The same goes for companies. Companies become, by nature, less innovative as they become more competent. And this is, of course, a big worry to CEOs. And I hear very often questions phrased in different ways. For example, how can I both effectively run and reinvent my company? Or how can I make sure that our company changes before we become obsolete or are hit by a crisis? So doing one well is difficult. Doing both well at the same time is art, pushing both exploration and exploitation. So one thing we've found is that only about 2% of companies are able to effectively explore and exploit at the same time, in parallel. But when they do, the payoffs are huge. So we have lots of great examples. We have Nestlé creating Nespresso. We have Lego going into animated films, Toyota creating the hybrids, Unilever pushing into sustainability. There are lots of examples and the benefits are huge. Why is balancing so difficult? I think it's difficult because there are so many traps that keep us where we are. So I'll talk about two, but there are many. So let's talk about the perpetual search trap. We discover something, but we don't have the patience or the persistence to get at it and make it work. So instead of staying with it, we create something new. But the same goes for that, and we're in a vicious circle of actually coming up with ideas but being frustrated. Oncosearch was a good example. A famous example is, of course, Xerox. But we don't only see this in companies, we see this in the public sector as well. We all know that any kind of effective reform of education, research, healthcare, even defense takes
10, 15, maybe 20 years to work. But still, we change much more often. We really don't give them the chance. Another trap is the success trap. Fawcett fell into the success trap. They literally held the future in their hands, but they couldn't see it. They were simply so good at making what they loved doing that they wouldn't change. We are like that too. When we know something well, it's difficult to change. Bill Gates has said, success is a lousy teacher. It seduces us into thinking we cannot fail. That's the challenge with success. So I think there are some lessons, and I think they apply to us, and they apply to our companies. So the first lesson is get ahead of the crisis. And any company that's able to innovate is actually able to also buy an insurance in the future. Netflix, they could so easily have been content with earlier generations of distribution, but they always, and I think they will always keep pushing for the next battle. I see other companies who say, I'll win the next innovation cycle, whatever it takes. Second one, think in multiple time scales. I'll share a chart with you, and I think it's a wonderful one. Any company we look at, taking a one-year perspective and looking at the valuation of the company, innovation typically accounts for only about 30%. So when we think 1 year, innovation isn't really that important. Move ahead, take 10-year perspective on the same company, suddenly innovation and the ability to renew accounts for 70%. But companies can't choose. They need to fund the journey and live the long term. Third, invite challenge. I don't think it's possible for any of us to be able to balance exploration and exploitation by ourselves. I think it's a team sport. I think we need to allow challenging. I think the mark of a great company is being open to be challenged, and the mark of a good corporate board is to constructively challenge. I think that's also what good parenting is about. Last one, be skeptical of success. Maybe it's useful to think back at the old triumph marches in Rome, when the generals, after a big victory, were given their celebration. Riding into Rome on the carriage, they always had a companion, whispering in their ear, remember, you're only human. So I hope I've made the point. Balancing exploration and exploitation has a huge payoff, but it's difficult and we need to be conscious. I want to just point out two questions that I think are useful. First question is, looking at your own company, in which areas do you see that the company is at the risk of falling into success traps, of just going on autopilot? And what can you do to challenge? Second question is, when did I explore something new last? And what kind of effect did it have on me? Is that something I should do more of? In my case, yes. So let me leave you with this. Whether you're an explorer by nature, or whether you tend to exploit what you already know, don't forget the beauty is in the balance. Thank you. At GM, how we achieve a carbon Yes. Coming to the discussion part, everybody has gone through this video. Can anybody let me know what was the first company they have talked of in the starting? Please write in the chat. What was the first company they have talked of? They have made some calculator. They have repeated this in the in between. The company's name was shown in the picture on the left also. So if anybody of you could recall, or either write no. If you're writing it, then it's okay. Otherwise, write it no.
For any of the company, you could recall they have talked of okay, what they talked of about first company, about the calculator. Could anybody recall? Have anybody have gone to the video or not? You may write yes or no, please. Hurry up. Or either write no, please. If you cannot recall, just write no. Okay. Okay, last me. Have you heard of the two words explore versus exploit? It was what you have understand. One must explore or one must exploit. Okay. So just let me know first what one must explore or one must exploit. You can write this now. Explore or exploit. According to you, a company or a person must be go for the exploitation, exploiting the things, or must go for exploration or to explore the things. What they go for? Explore, others explore, explore. अभी तक दो explore आए हैं बाकी explore. Okay, they have talked in the last. If you could hear, searching for more information about the customer demand, yes, and for the exploit. See, what was the basic difference? What we have discussed the first, the faucet company was there. They have started with this. There was one faucet company who has made some calculators. Okay. They have made such calculators. They have feel very good of it. 6 months. For the 6 months, it goes very high. It was the cheapest calculator available. But later on, the things goes on changes. The technology changes. If you are not adapting to it, you will not. See, exploit means you are based on your existing information. आप अपनी information पर based हैं, ठीक है? और आप कुछ new adapt नहीं कर रहे हैं. Although you realize your demand is less, still not, you are not changing. Why? Because you are already in the dreams of your success. 6 months back or year back, आपने जो success taste करी है, you want to be in the same. As same with the second company who was having the checking the treatment of the blood cancer. Okay, this was the second case being discussed. When they were checking with the blood cancer, they were trying to explore. Although they have trying to explore, they were doing just exploitation. They have once explored, then they have stick to the exploit only. They are doing the explore, but they are not able to give the perfect results, and their technology become obsolete. And the same with the case with this, they have gone for the obsolete. So here the two examples, the one is going for the exploitation and another goes for the explore. Still both become obsolete in the end. Okay? This company, this video has TED Talks, have also talks of the Netflix, how the Netflix, do anybody recall what they talked of the Netflix content? Yes or no? Okay, not any answer. So they have talked of Netflix, how the Netflix has adapted to the new content in their page, practicing new things. So what they want to encounter, they just want to see everybody is having the ideas, everybody would go for the practicality. But when you go for some practicality, you need to explore again side by side to search new things, to search new products,
You could think of, you need to have again the new innovation, the new exploration, then again the change in the idea, and again the practicality would evolve. In the end, it talks of one must not go to be more explorative, one must not be exploitative. Only the term used was balance. So they just use this term that when you talk of explore and exploit, there must be balance. If you keep on exploring the things, you keep on going for new and new things, you will not able to check whether whatever the ideas you have implemented in the market have been having any of the strength or not. See, if I'm going for the more of the exploration, the cost would increase day by day. Would I be able to balance it? So there must be the balance between these two. The company must have explore as well as exploit as at time. Whatever requires. It must not be on the one side. It must be having the what situation demands. They've also talked the success is a lost teacher. आपका जो success है that guides you is a lost teacher that would guide you how the losses could be encountered. Okay, this was all about this your case study. Moving towards the creativity, what does this creativity would involve? I'm not gonna discuss it all. I'm just highlighting the point. See, you know, when you want to have some of the things, you want to do any of the work, whether it would be creative or the simple one, you must change your space so that it would give a space could be more greener, must have a positive vibes, so that you could have the more of your brainstorming at the peaceful place rather than at the crowdy place. You could visualize the things, you could visualize the items, you could think of in the long run. Daydreaming is good, but in the daydreaming, it must be having some connection with the brainstorming or some visualizing the good things would be for the future. Why the parameters are there? Yes, you need to set the parameters, you need to set the standards so that if you are thinking something new, you must know what is your last step for this. ऑल्सो क्रिएटिविटी इनोवेशन को आप 4 वोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप 4 वोल्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगेन इट वुड रिक्वायर कि आप उसको डिफाइन करें 4 वोल्स में जस्ट टू नो दैट वेयर टू रीच एट फर्स्ट 4 वोल्ट. आपने अपना जब तक पैरामीटर या स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन किया, आप आगे नहीं जा पाए. यस, ऑब्वियसली कंसीडर द वर्स्ट केस सिनेरियो. अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं, बी रेडी फॉर द वर्स्ट. ओके, just encounter all the losses, so be ready for the worst scenario too. Again is we have already talked of your changing space, so we talked of your negativity, and negativity must not be there. Be sharp, be creative, things must be आपकी. अब आपके आंसर्स रेड बॉक्स में या ब्लैक बॉक्स में कहाँ है? You need to sharpen your mind only. अपने रूटीन को चेंज करिए, हैव योर कैलेंडर्स, न्यू थिंग्स लर्न करिए. होनी जरूरी नहीं है जो not with that those things you are grasping or learning the new things that would have the directly or indirectly effect on it. See, if I'm listening to the music, I'm just calming myself. Okay, it is nothing to do with my new knowledge. But if I've given the question of the music industry to the student, those who have listened the songs must be able to analyze how they would analyze that situation. So any knowledge, anything coming to you must could have be a problem in the future. गाने सुनना और म्यूजिक इंडस्ट्री की रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करना गिव्स यू एन आइडिया कि फ्यूचर में हो सकता है आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए. पे अटेंशन टू द पीपल आइडियाज. ऑब्वियसली आपके ग्रुप्स में हर चीज में आपको आइडियाज शेयर करने चाहिए. आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं. आप लोगों ने एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में. एवरीथिंग मल्टीप्लाइज. इट इज नॉट रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन. अगर आप किसी के साथ अपना आइडिया शेयर कर लेंगे, स्टीलिंग एंड अनदर थिंग, but if you are working in a team, that would multiply, that would add to you only. Okay,
These are the some basic points through which you can improve your creativity. You can think beyond. Okay, now moving to your another questionnaire. Okay, you must be having the creativity poll with your screen now in some seconds. Yes, here it is. Now just fill it. अब ये आपकी बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल पर है, आप अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है. दिस इज नथिंग हैड टू डू विद कि इसको हमने एनालाइज करना है कि आपने क्या आंसर दिया क्या नहीं. आप जस्ट वही मार्क करिए जो आपको सही लगता है. सारे ऑप्शंस आपके पास नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन है. नेवर कभी नहीं, रेयरली बहुत कम, समटाइम्स ग्रेटर डिग्री टू रेयरली, ऑफन बहुत बार. ठीक है, इनकी डिग्री ऐसे ही है, नेवर की सबसे कम, देन रेयरली, देन समटाइम्स, देन ऑफन. आप सबने पढ़ा है स्केल्स, तो इनकी डिग्रीज उसी हिसाब से डिफाइन की गई है. तो जस्ट मार्क इट जो आपको ऑप्शन सबसे पहले लगता है, चाहे सब आंसर्स के लिए आपने
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का बेसिकली मतलब है सिंबल, पिक्चर। आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज को शेप करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की बात करी, यस शेप्स। ए की बात करी, यस सिंबल। सर्कल की बात करी, यस शेप। ओके, तो जितनी भी चीजें आपने एनालाइज करी वो सब है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ऑल अबाउट दिस। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अबाउट सिंबॉलिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अबाउट शेपिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अबाउट थिंकिंग थ्रू योर सिंबॉलिक थिंकिंग। आप अपनी सिंबॉलिक थिंकिंग से अपनी माइंड को कैसे शेप करते हैं। जब बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता है, let's start, your first letter is A. In the English, everybody is being taught A for apple, A for aeroplane, is it? W for watch. ठीक है, तो दैट्स वाई जब हम चिल्ड्रंस में कोई चीज डेवलप करते हैं सिंबल से, उनको कार्टून दिखाते हैं, उनको फ्रूट्स दिखाते हैं, उनको वॉच की थिंग्स दिखा रहे हैं, तो शेप से हम उनको चीजों की एनालिसिस बताते हैं। दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज को हम उनकी शेप करते हैं थ्रू द सिंबल्स। वो सिंबल्स में हम उनके साथ फिगर्स ले लें, लैंग्वेजेस ले लें, गेम्स खेल लें। How we want to develop the abstract thinking. In the abstract thinking is simple. The symbolic thinking develops through the figures and the shape. Clear है? Moving to the next. कहीं भी problem हो, just let me know and interrupt. Okay. Next is your concrete thinking. कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब होता है टू हैव सम डिफाइंड सॉल्यूशंस। आपको कोई ना कोई सॉल्यूशंस चाहिए। उन सॉल्यूशंस के लिए आपको बेसिकली कंक्रीट एविडेंस चाहिए। जहां भी आप सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस डिमांड करते हैं, तो ये आपकी कंक्रीट थिंकिंग। आप चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए, बट उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हैं। जहां एविडेंस नहीं है वहां कंक्रीट थिंकिंग नहीं है। जहां पर पर्संस का दिस इज नॉट, जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं दैट इन्वॉल्व्स योर कंक्रीट थिंकिंग। जब मैं कह रही हूँ 5 वाइज, अभी किसी ने लिखा भी था व्हेन, वेयर, व्हेट, हाउ, व्हेन, ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, ये सारे 5 वाइज, 5 W's जहाँ कन्वर्ट आ जाते हैं मेरे पास, वाइज आ जाते हैं, that would involve your concrete thinking. You want each and every answers for your basis. आपको हर किसी का बेस का, खाली आपको ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं चाहिए। Finding ways with the evidence, yes. Okay, finding ways with the evidence. पहले प्रॉब्लम ही एविडेंस के साथ आएगी, देन सॉल्यूशंस आएंगे। तो एनालिटिकल थिंकिंग का फर्दर वर्जन है, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, ये प्रॉब्लम है, इसका ये एविडेंस है, ये इसका एविडेंस है, ये एविडेंस है, देन यू गो फॉर द सॉल्यूशन डायलिजेंटली। सो इट इन्वॉल्व्स एनालिटिकल थिंकिंग प्लस एविडेंस। एनालिटिकल थिंकिंग प्लस एविडेंस कर देंगे तो कंक्रीट थिंकिंग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द 6th one. We are ending with the 7th only. Convergent thinking. स्टार्टिंग में भी हमने बात की, कन्वर्जेंस का मतलब होता है, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, कि आप किसी भी चीज को एक पॉइंट पर आ रहे हैं। डाइवर्जेंस मीन्स आप स्प्रेड कर रहे हैं, कन्वर्जेंस मीन्स यू आर कंबाइनिंग ऑल द थिंग्स टू वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब कन्वर्जेंस का मतलब जितने भी आप ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं ना, उतने भी, दैट नीड्स टू बी मीट एट वन पॉइंट ओनली। किसी भी पजल्स को सॉल्व करना, उनके पीसेस को क्लब करना, यू वांट टू कन्वर्ज इट इनटू द वन कलर। आप चाहते हैं रेड कलर एक जगह आ जाए, व्हाइट एक जगह आ जाए, आपका क्यूब कन्वर्ज हो जाए सब एक जगह पर, ठीक है। दैट इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब भी आप पजल्स, रीडल्स, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग शेप करते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है ना, जब आपको एक वन वर्ड सोचना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सोचना होता है, तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो हर चीज को एक जगह ले जाती है। दैट इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग अगेन
would be the reverse of your convergent thinking. Divergent thinking आपको क्या कहती है? आपको कहती है नहीं, एक जगह नहीं सोचना है, आपको ऑल्टरनेटिव सोचने हैं। जब आप स्पेस में जाते हैं, आप थिएटर्स में जाते हैं, जब लाइट ऊपर से पड़ती है, कहीं भी किसी भी पर्सन पे लाइट पड़ती है, पहले वो कन्वर्जेंस होती है, फिर वो डाइवर्ज हो जाती है। आपकी लाइट की शेप कैसी होती है? ऐसी, एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लैश लाइट की तरह है, ठीक है। जहां आइडियाज मूव करेंगे वो वहीं चल जाएंगी। आपकी फ्लैश लाइट कहाँ मूव करती है? जैसे अब अभी भी हम यहाँ पर स्पॉटलाइट डाल दें, अभी जूम पे हम स्पॉटलाइट पे वीडियो शेयर कर दें, तो जो भी बोलेगा स्पॉटलाइट उस पर चली जाएगी। ऐसे ही आपकी फ्लैश लाइट स्पॉटलाइट जहां मूव करती है वो वहां चल जाती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है जहां से भी आपको आंसर्स मिले, जहां से भी आपको इफेक्टिव आंसर्स मिले, यू नीड टू मूव टू दैट। हो सकता है कहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाए, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब पर्संस बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे सोचते हैं, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नाउ कमिंग टू आवर टेस्ट एंड द फाइनल टेस्ट। कुछ है सेवन थिंकिंग में आप पूछना चाहते हैं तो? नहीं, ओके। फाइनल लास्ट टेस्ट है आपका, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टुडेज सेशन। इसमें हम एनालाइज करेंगे कि आपकी थिंकिंग क्या पैटर्न है। किसी के पास नोट पैड्स नहीं है तो फटाफट से अपने नोट पैड्स ले लीजिए, पेन पेंसिल जो भी है, ठीक है। काइंडली मार्क इट समवेयर। आप लोगों को आपके जो थिंकिंग स्टाइल है मैं अभी डिस्कस करूंगी, व्हाट आर दीज फोर, ठीक है। आप whether your thinking is concrete sequential, random, abstract sequential or abstract random, ठीक है। This is the McGregor, your M. Archer and Dr. Stacy Nixon ने ये डेवलप किया हुआ है on the basis of the four. What you think of the different parameters, that is your thinking style. नोटपैड ले लीजिए। अब आपको आंसर्स मार्क करने हैं आपके। तभी अपने नोटपैड्स में, अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो 4 कॉलम्स और 15 रोज का एक टेबल बना लीजिए। हमारे पास 15 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो आंसर्स आते हैं आप यहाँ पर लिख लीजिए। पहले आंसर्स अपने यहाँ लिखेंगे आप, और ये 4 कॉलम्स अभी आप छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए। रोज में 1 2 3 4 15 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप जो आंसर सोच रहे हैं आप यहाँ लिखेंगे। किसका आंसर सोच रहे हैं आप? इसका। मान लीजिए फर्स्ट का क्या आंसर है मेरे लिए, मैं भी आप लोगों के साथ करती हुई एक्सरसाइज। तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आते हैं और आपके क्या आते हैं। ओके, एग्जाम्पल कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स कोई देना चाहेगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में क्या होते हैं? देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में यही है, जब आपने जितने भी आप क्रॉसवर्ड पजल्स करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बच्चे? आप उस टाइम पे यही सोचते हैं ना कि आपको वन वर्ड आंसर्स दिए, आपको जिग्जो पजल, टॉप क्रॉस, टॉप बॉटम दिया होता है, तो आपको एक जगह पर सोचना होता है, ठीक है। रियल लाइफ में आपके क्रॉसवर्ड पजल्स कब आते हैं? जब आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर में कोई इवेंट चल रहा है, लाइट चली गई है, जनरेटर वर्क नहीं कर रहा है, आपको जहां से भी अपनी थिंकिंग को कन्वर्ज करके एक जगह ही लाना होगा। क्या लाइट खराब है?
ठीक है, या आप ऑल्टरनेट आपके अपने लिए बैटरी यूज करेंगे। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कम्स लाइक दिस, जहां पर आपके सारे सॉल्यूशंस फेल हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बीच में बचता है, दैट इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग। इज इट क्लियर देवाशीष? ओके, ये सबने टेबल बना ली है, कोई रह गया है? तो एवरीबॉडी डन विद दिस टेबल? आप लोगों ने रफ में टेबल बना ली है? यस और नो लिख दीजिए प्लीज। और अभी बना रहे हैं? यस, ठीक है। 1 to 15 है, 1 2 3 4 5 अपने आंसर्स यहाँ पर देंगे अभी, ठीक है। चलिए करते हैं टेस्ट। ओके, आप बताइए, आप इनमें से अपने आप के लिए रीड, टेस्ट योर ओन थिंकिंग स्टाइल्स, रीड, सेट ईच ऑफ द वर्ड्स एंड मार्क द टू दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू। ठीक है, आपको कोई भी 2 मार्क करने हैं जो आपको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। आप चाहे तो 1 मार्क कर लीजिए, 2 करेंगे तो 1 2 में भी कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो 1 मार्क कर लीजिए। आंसर्स में आप आंसर 1 और आंसर 2 दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आंसर्स यहाँ मार्क करेंगे 2। मैं उसी विंडो पे जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी विंडो वो सही से दिख पाए, ठीक है। मैं भी अपने रफ में ही मार्क कर लेती हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया, मैं अपने आप को सी और ए में डिफाइन कर रही हूँ। मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसमें जो है मैं आपको अपने आप को कह रही हूँ ए या बी में डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? बताइए, सबने मार्क कर लिया? आप क्या है? मैंने कह दिया मैं रियलिस्टिक हूँ और इमेजिनेटिव हूँ, तो मैंने सी और ए मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज, एडेप्टेबल, क्रिटिकल, इंक्लूसिव। क्या है आप? मैंने कहा मैं ऑर्गेनाइज हूँ और एडेप्टेबल हूँ। आप अपना मार्क कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हैं। और कोई अपने 2 ऑप्शन मार्क कर ले, ठीक है। ऐसे मार्क करने हैं आपको। थर्ड में है डिबेट करते हैं, गेट टू पॉइंट आ जाते हैं, कुछ चीजें नहीं क्रिएट करते हैं या रिलेट करते हैं। फोर्थ है पर्सनल, प्रैक्टिकल, एकेडमिक, एडवेंचरस। फिफ्थ इज प्रिसाइज, फ्लेक्सिबल, सिस्टमैटिक, इन्वेंटिव। जब 5 क्वेश्चंस तक आपके 2-2 ऑप्शन मार्क हो जाएं, मुझे बता देना, देन विल मूव टू नेक्स्ट 5। डन हो गया? 6 7 8 9 पे आ रहे हैं। ओके, 6 पे है शेयरिंग, यस 5 तक ही करना था। देन है शेयरिंग, ऑर्डरली, सेंसिबल, इंडिपेंडेंट। आप क्या है अपने हिसाब से 2 क्वालिटीज अपनी दे दीजिए, शेयरिंग, ऑर्डरली, सेंसिबल, इंडिपेंडेंट। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव, परफेक्शनिस्ट, कोऑपरेटिव, लॉजिकल। देन इंटेलेक्चुअल, सेंसिटिव, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग। एट किसी का रह गया हो तो बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। 9 10 करेंगे रीडर, पीपल पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्लानर, मेमोराइज, एसोसिएट, थिंक, पॉजिटिव। ये करिए एक बार, मैं आपके साथ ये मेल पे भी शेयर कर देती हूँ ताकि अगर किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेल से चेक कर दे, और लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो चेक।
ये कर लीजिए एक बार, अब 15 तक फटाफट से सारे कर लो, तब तक मेल कर लो आपको। अब सबको विजिबल होगा, अपने स्क्रीन का जूम कर लेना। यस, अल्फाबेट ए एंड वॉच, क्या पूछा आपने? अच्छा, पुराना मैसेज। ओके, हो गया सबका, 15 हो गए सारे। वैसे मैंने आपको मेल भी कर दी, इन केस अभी आपका कैलकुलेट ना हो पाए तो आप लेटर ऑन भी देख सकते हैं, ठीक है, कि आपकी थिंकिंग स्टाइल कहाँ मेजर करती है। चलिए नीचे आ जाए, किसी का कोई रह नहीं गया, कोई है जो कर रहा हो अभी स्टिल डूइंग? ओके, करिए बच्चे फटाफट से। जिनका हो गया है वो नेक्स्ट पेज देख सकते हैं मेल पर। कर लीजिए 2 मिनट और, फिर आगे आ जाते हैं सॉल्यूशंस पर। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, आपके अपने आंसर्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेग्रेट करना है। जो आंसर्स आए हुए हैं, अगर मान लीजिए आंसर्स में दे रखा है 1, अगर आपने सी किया है मार्क तो यहाँ दे दीजिए। अगर आपने इसका डी किया है मार्क तो सेकंड नंबर पे लिख दीजिए। थर्ड में ए किया है तो यहाँ लिख दीजिए, और बी किया है तो यहाँ लिख दीजिए। अब मैंने क्या किया, सी और ए, तो ये डी और बी कट जाएगा मेरे लिए आंसर्स आ जाएंगे सी और ए यहाँ पर। तो मैंने ए और बी किया है तो मेरा ए आएगा, यहाँ की सीक्वेंस दे रखी है ए सी बी डी, तो मैंने मार्क किया था ए और बी। मैं अगेन फर्स्ट और थर्ड कॉलम में ही आ रही हूँ। ये बात समझ आई है आप लोगों को? मैंने क्या किया है, स्टिल डूइंग। ओके ओके, नहीं आई समझ? ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ एक बार, ठीक है? देखिए आप लोगों के पास ओके, एक बार खत्म कर लीजिए, फिर मैं रिपीट करती हूँ, एक ही बार समझ आ जाएगा। बाकी आप लोगों के पास ये है, तब अपना प्लीज मार्क करके जो कर रहे हैं जल्दी से खत्म करिए। 2-3 बच्चों ने भेज दिया है, 1 मिनट और, कुछ भी अपना मार्क कर लीजिए जो आप सोचते हैं अपने बारे में। हो गया सबका जो कर रहे थे? शुड आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज? आ जाओ मैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, इनके स्टिल आपका रह जाए, आपके पास मेल पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अगर आपका 1-2 ओके करिए, अगर आपका 1-2 क्वेश्चन रह गया इट्स ओके। मैं ये कह रही थी, मैं अगर चेक करूं आप लोगों के साथ, मैं यहाँ शो करती हूँ, जस्ट चेक। ये तो वीडियो ही नहीं चल रही, वेट करिए बच्चे। अगर आप लोगों ने अपनी मेल चेक करी हो, वहां आपको आंसर दे रखे हैं कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या मार्क करना है। हो गया? मैं स्क्रॉल कर लूं एक बार प्लीज। तो आपको आंसर दे रखा है, मान लीजिए उन्होंने सीक्वेंस दी है, अगर आपने अपने आंसर ये है सी डी ए बी, आंसर है ए सी बी डी, या आंसर है बी ए
डी सी, ऑप्शन दे रखा है ए सी बी डी, नहीं ये है बी सी ए डी, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ है बी सी ए डी। ओके, देखिए बच्चे ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। ये जो मैट्रिक्स मैं आपके लिए यहाँ पर बना रही थी कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, आपने हर किसी के 2 आंसर्स मार्क करे हैं ना। ये मैट्रिक्स मैंने 4 क्वेश्चंस का लिख दी है, ठीक है। आप अपने ऐसे मैट्रिक्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपने यही मैट्रिक्स अब एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं भी, या आप लिख लीजिए। अब आप देख लीजिए, मैंने आंसर 1 में सी मार्क किया था। सी कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। सी मेरा फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे आंसर के लिए कॉलम कौन सा है? 1। ए कहाँ आ रहा है? थर्ड में, यहाँ मार्क कर दीजिए। ए बी, जो जो मेरे आंसर है उन्हें हाईलाइट कर दीजिए बस। यहाँ मान लीजिए मैंने दिया था आंसर डी और ए, तो हाईलाइट हो गया डी ए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आंसर दिया ए और बी, तो बी यहाँ है, हाईलाइट हो गया, ए यहाँ है, यहाँ हाईलाइट हो गया। आप समझ रहे हैं क्या किया हमने? हमने अपने आंसर्स को उनके मैट्रिक्स के हिसाब से टिक कर दिया है, समझे? इज इट क्लियर? अब 5th का देखिए क्या है आंसर, ए सी बी डी। 5th में लिख लीजिए ए सी बी डी। मेरे आंसर्स थे डी एंड सी, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं इसको हाईलाइट कर दिया और इसको हाईलाइट कर दिया। आया समझ सबको? इज इट ओके? आंसर्स खोल दूं? अपना आंसर मार्क करेंगे एक बार, किसका क्या आ रहा है, ऐसे ही। जिसको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज लिखिए रिपीट, जिसको नहीं समझ आया रिपीट लिखिए। आपके पास ये आंसर्स हैं, आपको अपने कॉलम में हाईलाइट करने हैं और हमें देखना है मेरे कौन से कॉलम का स्कोर कितना आ रहा है। अभी देखिए मेरे पास 1 में 3 आ रहे हैं, सेकंड में 2 आ रहे हैं, तो कॉलम का स्कोर 4 आ रहा है, 4th में 1 आ रहा है। जो मेरे आंसर्स होंगे मैं उनका टोटल कर लूंगी बस। दिस व्हाट द एक्सरसाइज डज। जिसको प्रॉब्लम आ रही है लिख दीजिए, और अदरवाइज मेरे हिसाब से आप लोग आंसर्स लिख रहे हैं और आप मुझे अपने कॉलम का टोटल बताएंगे। तो यहाँ कितना टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है। कितने कॉलम्स आपके हाईलाइट हो गए हैं फर्स्ट में, कितने सेकंड में, कितने थर्ड में, कितने फोर्थ। नहीं, ज्यादा का टोटल नहीं करना है, एट लास्ट जिसमें सबका है सबका टोटल करना है। जैसे मैं अपने 5 क्वेश्चन के बेस पर अगर अपना एनालिसिस करूं तो मैं टोटल क्या करूंगी, तो मैं ये करूंगी जैसे 1 2 3 आ गया, यहाँ लिख दीजिए टोटल में 3, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ है 4 और यहाँ है 1। आपकी डिग्री पता चलेगी। हमें सबका टोटल करना है, हमें सबका टोटल भी करना है, सबका लेना है। जो आंसर आ जाएगा मेरा टोटल, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। टोटल मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस का लिया, आप 15 क्वेश्चन का लेंगे। मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 करूंगी तो 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर 8, यहाँ 16, यहाँ 4। ओके, आपके आंसर आ रहे हैं 9768 आ रहा है आपका। ओके, बाकी भी अपने आंसर बता दीजिए। जो आपका टोटल आ जाए, आप अंजलि आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर लीजिए। अब
जिनका हो गया है वो इन टोटल्स को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। आपके सारे 15 क्वेश्चंस के टोटल होने चाहिए। 9 का मतलब टोटल 9 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर है 36। 7 का मतलब 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, सॉरी 6 6 जा 6 4 जा 24, ठीक है, एंड 8 4 जा 32। ये अंजलि के आंसर्स हैं। आप अपना बता दीजिए, बाकी किसी ने किया है तो। ओके, कुणाल ने अपने आंसर शेयर करे हैं। कुणाल के आ रहे हैं 32, 36, 44 एंड 8। 2 मिनट्स रुको, जिसको अपने आंसर शेयर करने कर दो, मैं भी डिस्कस करूंगी 12:50 तक। ओके, मेधा के भी आ गए हैं 32, 28, 24, 36। उसके बाद शिवांग ने दिए अपने आंसर्स 40, 24, 16। नोट टू थिंक, जिनके आगे इट्स ओके, हम इसके बेस में एनालिसिस कर लेते हैं अब, ठीक है। आपके नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आपकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होनी जरूरी है। किसी का अभी चल ही रहा है प्रोसेस तो भी कोई बात नहीं। 36, 24, 28, 32। ओके, मैंने ये नंबर किसी और के लिख दिए। दिस इज फॉर द सोनू। इशिका का है ओके, सौम्या, रक्षिता, नूतन, गुंजन सबने अपने आंसर दे दिए। सक्षम 2, गुड। चिराग वेरी गुड, ठीक है। अब चिराग के तो 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब चिराग की दोनों पर्सनालिटी। और किसी का कोई सेम था यहाँ पर? किसी का कोई सेम है? सेम 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 नहीं। और किसी का कोई सेम आ रहा है? नहीं नहीं, तो 2 पर्सनालिटीज आ रही हैं। करें एक बार। अब क्या करना है इनका? अब इसमें से जो हाईएस्ट होंगे मार्क्स, ऑब्वियसली जैसे इनका कौन सा हाईएस्ट है? मैक्सिमम 36 है इसका, इनका मैक्सिमम 44 है। ये थर्ड कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है। इनका मैक्सिमम 36 है, ये इस कॉलम में आ रहे हैं। अब चिराग के 2 कॉलम्स आ रहे हैं, चिराग बीच में था 44 44। अभी विनय ने दिया है, उसका फर्स्ट कॉलम एक्स्ट्रा है। मयूर का भी नहीं 40 40 है। विनय का 4th कॉलम आ रहा है, मयूर का 3rd आ रहा है, ध्रुव का 3rd आ रहा है, गिरीशा का 3rd आ रहा है, चिराग का 2nd और 3rd आ रहा है हाईएस्ट, महक का 3rd आ रहा है, सक्षम का 3rd, गुंजन का 32 3rd, नूतन का 1st आ रहा है, रक्षिता का भी 3rd आ रहा है, सौम्या का भी 3rd आ रहा है। और इनसे पहले यहाँ पर जिन जिन के हाईएस्ट हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। किसी का 1st है, किसी का 4th है, नहीं 2nd है ये। इनका 1st, शिवांग का 1st और 4th है, इशिका का 2nd है, मेधा का 4th है, ठीक है। ओके, मैं बता देती हूँ दोबारा, हमने कुछ नहीं किया है। एक बार इनके रिजल्ट्स आने से पहले मैं बता देती हूँ हमने क्या किया है। रिपीट कर रहे हैं एक बार क्विकली। देखिए, आपने यहाँ पर आंसर्स मार्क कर लिए अपने। जब आप अपने आंसर मार्क कर लेंगे तो आप अपने आंसर्स को यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक सेट पैटर्न दिया हुआ है। अगर आपने सी मार्क किया है तो उसको 1st कॉलम में ले लीजिए, ए मार्क किया तो 3rd में, डी मार्क किया। मैंने क्या किया, मैंने एज इट इज इनके आंसर्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। अपने वाले को मार्क करने से अच्छा ये वाली टेबल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पर पूरी टेबल मान लीजिए मैंने ये उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर ली, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। CD AB 2 जो भी हो रहा है, ये CD AB, ठीक है।
जब मैंने कॉपी पेस्ट कर ली तो मैंने देखा मेरा फर्स्ट का आंसर सी था, सेकंड का आंसर ए था। जो मेरे आंसर हैं कौन से कॉलम में आ रहे हैं आपको इस हिसाब से पुट करना है। अगर मैंने 7th क्वेश्चन के लिए ए और सी मार्क किया है तो 3rd और 4th में अपना आंसर लिख दीजिए। आप 2 आंसर चूज करने थे और आपको उन कॉलम में डाल देना है, ठीक है। प्रखर, मनन और साहिल ने भी अपने आंसर्स दे दिए हैं, ठीक है। जब आप डाल देंगे बच्चे, आप उसका टोटल करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करा अपना, आप लोगों ने 15 का करना था। मेरे 5 का टोटल 3, 2, 4, 1 था। मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, जो 12, 8, 16, 4 आया। बच्चों ने अपने ये आंसर्स दिए हैं, चैट में भी आ रहे हैं। अब साहिल का फर्स्ट का हाईएस्ट आ रहा है। जिनका हाईएस्ट आएगा, अब हाईएस्ट में आप कौन कौन से स्टाइल्स हैं, अगर आपका फर्स्ट कॉलम हाईएस्ट आया तो आपकी थिंकिंग कंक्रीट सिक्वेंशियल है। अगर आपका सेकंड कॉलम हाईएस्ट आया, आपकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल है। अगर आपका थर्ड कॉलम हाईएस्ट आया, आपकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट रैंडम है। और आपका फोर्थ कॉलम हाईएस्ट आया तो आपकी थिंकिंग कंक्रीट रैंडम। ये मैंने अभी आपको थिंकिंग पैरामीटर्स नहीं बताए हैं, ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वाला पर्सन सीएस है, सेकंड वाला एएस है, थर्ड वाला एआर है और फोर्थ वाला सीआर है। ये क्या होते हैं, आपकी थिंकिंग कहाँ एनालाइज करनी है, ये अभी हमने डिस्कस करना है। तो आप बता दीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो आप क्या कर रहे हैं। जिनका फर्स्ट मैक्सिमम आया है वो सारे कंक्रीट सिक्वेंशियल थिंकर हैं। दे आर कंक्रीट सिक्वेंशियल थिंकर्स। जिनका सेकंड कॉलम हाईएस्ट आया है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल थिंकर्स हैं। हाँ जी, काउंट करने के बाद। जिनका एआर आया है वो एब्स्ट्रैक्ट रैंडम थिंकर्स हैं, थर्ड वाले, और फोर्थ वाले कंक्रीट रैंडम है। टोटल करेंगे, क्या टोटल करेंगे, इसमें आपको टोटल करना है मेरे इसमें कितने वाले आंसर्स मैच कर रहे हैं उनके हिसाब से। मेरे 3 आंसर उनके हिसाब से मैच कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया टोटल 3। इस रो में मेरे कितने आंसर उनके हिसाब से मैच कर रहे हैं, 2, तो मैंने लिख दिया 2। यहाँ मेरे कितने आंसर्स मैच कर रहे हैं, 4, तो मैंने लिख दिया 4। लास्ट में मेरे कितने आंसर मैच कर रहे हैं, 1, तो मैंने लिख दिया 1। मल्टीप्लाई बाय टोटल को मल्टीप्लाई करिए 4 से और आपका आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? करें, कौन से थिंकर्स होते हैं, आ जाए उस पर। चलिए, फर्स्ट है आपके कंक्रीट सिक्वेंशियल थिंकर। शॉर्ट में बात करें, कंक्रीट सिक्वेंशियल थिंकर रियलिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स, फिगर्स में से रियल सिचुएशंस को ज्यादा मानते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड कॉलम में आ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल में, तो आप थ्योरी बेस्ड लवर्स हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आप कंक्रीट सिक्वेंशियल है, रियलिटी बेस्ड है, तो बेसिकली आप हर चीजों के स्टेप्स, हर चीजों के एविडेंस चाहते हैं, हर चीजों की डिटेल्स चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रास्प करिए। कोशिश ये भी करिए रियलिटी लाने के लिए आप बहुत सारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करें और बी द मोर लिसनर्स, ठीक है, रेदर देन टू बी एक्सट्रोवर्ट, बी एम्बीवर्ट। चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करें, बिकॉज योर नॉलेज इज बेसिकली आप एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपनी सारी एनर्जीज को सेव करना चाहिए और टैप करना चाहिए। ओके मुकुल, योर आंसर इज चलिए, सेकंड में हमने बात करी एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल, जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरी बेस्ड। एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरी बेस्ड है तो आपकी जो लॉजिकल स्किल्स हैं वो थोड़ी ज्यादा होंगी बजाय कि एनालिटिकल स्किल्स के। आप क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, ठीक है, या आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादा कर सकते हैं। तो आप ऐसी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। आप अपने आप को चाहे स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन दीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट ट्राई टू बी यूज योर नॉलेज अकॉर्डिंगली। अगर आपके 2 कॉलम्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, हो सकता है कुछ चीजों में रियलिटी बेस्ड है और कुछ चीजों में थ्योरी बेस्ड है, आपकी नॉलेज 2 जगह लाइक कर रही है। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं आपको बताना कि अगर आप इस एरिया में लाइक कर रहे हैं तो आपकी ये स्ट्रेंथ है और आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो शेयर दिस पीपीटी विद यू। यू कुड आल्सो गो फॉर कि कंक्रीट सिक्वेंशियल थिंकर्स को क्या करना चाहिए।
ठीक है, ऑल्सो वुड बी गिवन इन दैट 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्टाइल जो मैंने आपके साथ अभी पीपीटी शेयर करी है, उसमें ये सारा अवेलेबल है। अभी जो पीडीएफ शेयर की है मैंने आपके साथ टेस्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड कैटेगरी इज फॉर द एब्स्ट्रैक्ट रैंडम। एब्स्ट्रैक्ट रैंडम कौन से थिंकर्स हैं? इंफॉर्मेशनल थिंकर्स हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एसोसिएशन चाहते हैं, ठीक है। ये टीम बिल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को अपनी टीम स्पिरिट पर वर्क करना चाहिए, एसोसिएशन में वर्क करना चाहिए, जिससे वो डिस्कशंस और अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप ऑलरेडी दूसरे लोगों के साथ अडेप्ट हो सकते हैं, आप लोगों के ग्रुप में ज्यादा अडेप्ट हो सकते हैं बजाय कि कोई नई चीजों के लिए। नई चीजों के लिए अडेप्टेबिलिटी आती है, कंक्रीट रैंडम के लिए ये एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, ये हर रोज नई नई चीजें देखते रहते हैं, ये चीजों को नए नए पर्सपेक्टिव सर्च करते रहते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव सर्च करने चाहिए और उस पर अपने आप को फोकस करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना चाहिए। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, सिक्वेंशियल फर्स्ट कॉलम में आ रहे थे तो आप रियलिटी बेस्ड हैं, तो आप अपने फैक्ट्स और फिगर और नॉलेज को गैदर करते रहिए, नई नई चीजों को पढ़ते रहिए। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल है, सेकंड कॉलम में आ रहे थे, अब थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपका लव ऑफ द वर्ड थ्योरी है, तो भी कोई बात नहीं। बस आप चाहिए तो अपनी क्वेश्चंस को शेयर करिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करिए एंड ट्राई टू लर्न द थिंग। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रैंडम में अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करिए और कंक्रीट रैंडम वाली न्यू चीजों को एक्सपेरिमेंट करिए। दिस इज ऑल अबाउट योर 4 स्टाइल टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। डन फ्रॉम माय साइड, स्टिल अ क्वेरी यू मे आस्क। और लास्ट वाली एक्सरसाइज आप अपनी दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी मेल पर शेयर कर दी है। आप चेक करिए आप कौन से थिंकर्स हैं और आपको क्या करना चाहिए फर्दर। लास्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है आपको क्या करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। Should we end the session? Do anybody would like to say something? Okay, कुछ और? Okay, good. If you find it interesting, hopefully आप लोग बोर ना हुए हो, बाकी तो कुछ नहीं, Recording stopped. है ना?